Hello students, ICRA High School online teaching method, Standard 7, Chapter 15, Mughal Empire, Golden Age and Downfall. Dear students, before going to this chapter, I'd like to remind you know that the previous chapter I explained, Mughal rule in India was established by Muslim rule in India was established by Muhammad Ghori in the 12th century CE. In this, Ghori was helped by his general Qutbuddin Aibak. Ghori appointed Aibak as the viceroy of his Indian conquest. Muhammad Ghori died in 1206 CE as he left behind no descendants. His viceroys declared themselves independent rulers of the regions they governed. Qutbuddin Aibak claimed the Indian territories, which included Punjab, Sindh, the Indo-Gangetic Plains, and present-day Bihar and Bengal. He established his capital at Delhi. With the accession of Qutbuddin Aibak to the throne of Delhi, begins the history of the Delhi Sultanate in India. It lasted for more than 300 years from 1206 to 1506 CE. The rulers during this period called themselves sultans. Hence, the rule is known as that of the Delhi Sultanate. 5 successive dynasties ruled over northern India during the reign of the Delhi Sultans. They were the slave dynasty 1206 to 1290 CE, the Khaljis 1290 to 1320 CE, the Tughlaqs 1320 to 1399 CE. So this was earlier periods, okay, which India ruled by Sultanate period, we can say. So during students, in this chapter, the great Mughal rule in India, as you see in this screen, so some here is, I can say, source to explain you, as you are seeing some picture on the screen. Here you see Jalu's family went on a tour to Delhi. Okay, one of the family by name Juhus went to tour for Delhi to see. Here, by one name girl, Palak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher. As we are generally, whenever we went to tour or something, excursion or like that, okay, fun trip. So actually we just took the snaps, videos like that, and we share with our friends, okay, with our well-wishers. So in the same way, the girl shared the photos to students and teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. In each picture, there is one question written. Looking at one of the pictures, students asked the teacher a question. What is the lady pulling the chain? Why is this lady pulling the chain, as you are seeing on the screen? The teacher answered that this picture shows the system of justice during Jahangir's period. The teacher explained, the history teacher explained to the student beautifully that it was a system of justice during the Jahangir period. We will get information about different Mughal rulers today. So, in this chapter, you will get information and knowledge of different Mughal rulers and the empire in this chapter. After the death of Akbar, the most inspiring ruler of the Mughal dynasty, Jahangir ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was extended far and wide during his period. So, after the death of Akbar, the most inspiring ruler of Mughal dynasty, who is the most inspiring ruler of the after the death of Akbar, Jahangir. Okay, he extended the throne of Delhi. इसके मतलब होता है कि जब अकबर के देहांत के बाद में जो बहुत इंस्पायरिंग, जो इंस्पायर करने वाला जो रूलर था वो जहांगीर थे. ओके, फिर जब वो अपना गद्दी संभाले दिल्ली की, द मुगल किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फॉर एंड वाइड ड्यूरिंग हिज पीरियड. इनके वक्त में जो मुगल पीरियड था हिंदुस्तान में दूर दूर तक फैलने लगा, इनका राज दूर दूर तक फैलने लगा. देयर वॉज पीस इन द स्टेट. ओके, पूरे स्टेट में, हर राज्य में, मुल्क में बहुत अमन और शांति
थी इनके पीरियड में। आफ्टर हिम ड्यूरिंग शाहजहां रूल, इनके बाद जो ड्यूरिंग शाहजहां का जो वक्त आया था मुगल रूलर, मेनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, बड़े बड़े जैसे इन्होंने ताजमहल बनाए और बड़े बड़े अच्छे से निर्माण किए, बड़े बड़ी इमारतें इन्होंने निर्माण किए। हम इसको कह सकते हैं आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को निर्माण किया शाहजहां के वक्त में। द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम, दुनिया के मशहूर बड़े बड़े बिल्डिंग्स इनके वक्त में बनाए गए हैं। ड्यूरिंग हिज रूल द मुगल डायनास्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड, ओके, स्टेबलाइज, इनके वक्त में जो मुगल डायनास्टी स्टेबलाइज हो गई, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओके, बहुत अच्छे से चल रही थी। लेटर ऑन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल द एम्पायर एक्सटेंडेड बट इट लीड टू द फॉल ऑफ एम्पायर टू। इसके बाद क्या हुआ मालूम है, जब औरंगजेब, ओके, जब उन्होंने यहाँ पे सक्सेसिव किंग बने थे तो इनके दौर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। लेटर लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर इंसिडेंसेस दैट अक्टर्ड ड्यूरिंग जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब पीरियड। तो हम यहाँ पे चलो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, ओके, आप जानोगे बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, ओके, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल रूलर्स के पीरियड में, ओके। सो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, तो हम जैसे आप देखते हैं जहांगीर का यहाँ पे तस्वीर भी दी गई है, ओके, पोर्ट्रेट दी गई है, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। सो जहांगीर का पीरियड था 1605 टू 1627 इनका पीरियड था, ठीक है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ अकबर, जब अकबर के देहांत के बाद, अकबर के जाने के बाद, हिज सन सलीम एडॉप्टेड द नेम जहांगीर, उनके जो लड़के थे, ओके, अकबर, उनका नाम था सलीम, लेकिन उन्होंने नाम जहांगीर एडॉप्ट किया है, ओके। विनर ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर का, सलीम का मतलब होता है विनर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला। एंड एक्सेंटेड द थ्रोन, ओके, ये थ्रोन पे इन्होंने फिर अपना संभाला किंगडम को। प्रिंस, ओके, यहाँ सी हियर, प्रिंस खुसरो रिवॉल्ड अगेंस्ट हिम, सो ही इम्प्रिजन हिम, ओके, प्रिंस खुसरो ने क्या किया, रिवोल्ट किया, उनके खिलाफ अगेंस्ट गए, हिम, सो ही इम्प्रेजन हिम, तो उन्होंने क्या किया, इनको इम्प्रेजेंट कर दिया, मतलब ओके, बिहाइंड, पुट बिहाइंड बार्स, मतलब जेल में ने रख दिया। जहांगीर ब्लेम्ड, ओके, सिख गुरु अर्जुन सिंह हु हेल्प्ड हिम एंड टू किल हिम, तो जहांगीर ब्लेम किया, निंदा किया, किसको, सिख गुरु अर्जुन सिंह को निंदा किया। हु हेल्प्ड हिम एंड सो किल्ड हिम, तो उन्हें उनकी मदद किया था, इसीलिए उनको ये ख़त्म कर दिए थे। ड्यूरिंग जहांगीर सीन, ओके, जब हॉकिंस एंड थॉमस रो विजिटेड इंडिया एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो जब जहांगीर के दौर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के, ओके, इंग्लैंड से, हॉकिंस एंड थॉमस नाम के जो थे, वो इनके दरबार पे विजिटेड किए एंड सॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया, और वो लोग ने इनसे इंडिया में बिजनेस करने के लिए परमिशन मांगा था। जहांगीर वाइफ नूरजहां वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस, तो इनकी जो वाइफ थे, इनकी जो हम कह सकते हैं कि इनकी बीवी थे, एहलिया थे, उर्दू में हम कहेंगे, तो जहांगीर की जो वाइफ नूरजहां थे बहुत खूबसूरत और एम्बिशियस थे, बहुत मतलब कुछ करने का उनमें जज्बा था। एंड शी ओनली हैंडल्ड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो इनकी जो वाइफ थे वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरा सारा बड़े ट्रिक से, बड़े अंदाज से ये अपना संभालते थे, ठीक है। तो ये हो गया था जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहजहां, तो यहाँ पे शाहजहां का टाइम कौन सा है, 1627 टू 1658, इनका जो ये इनके वक्त में ये थे, ये डेट बताया गया। शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज द पिलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इनका मानना था, देखिए हर आदमी का अलग अलग परसेप्शन होता है, एवरीबडी हैव देयर ओन परसेप्शन, ओन आइडियाज, ओन गाइडलाइंस, ओन प्रिंसिपल, वंस ओके फॉलो ऑन दैट। सो हर आदमी के उसूल, हर आदमी के आइडियाज होते, तो इनके नज़रिए में, इनके माइंड में ऐसा था कि जो पिलर होता है, ठीक है, वो एक्चुअली खेती था, प्रॉस्पेरिटी था। एक देश को तरक्की करने में, एक राज्य को तरक्की करने में खेती बहुत ज़रूरत होती। तो इन्होंने क्या किया, ही गेव इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यूड विद अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम, इन्होंने क्या किया, खेती पे बहुत ज़्यादा प्राधान्यता, बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, और अकबर की जो रेवेन्यू सिस्टम था, तौर तरीका था, उसको फॉलो करने लगे। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स, इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में जो मेहनत करने वाले और ईमानदार लोग को ऑफिसर्स की तरह अपॉइंट किया है। शाहजहां मेड ए न्यू सिटी शाहजहानाबाद, इन्होंने एक नया शहर बसाया है, उनका वो नाम था शाहजहानाबाद, कहाँ पे, नियर दिल्ली, एंड कंस्ट्रक्टेड ग्रेट बिल्डिंग, दिल्ली के पास में, और वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे निर्माण ये लोग ने किया। देयर वाज मोर इनकम ड्यूरिंग शाहजहां इन
कंपैरिजन टू अदर मुगल एम्पायर्स, मुगल एम्परर्स। अगर हम दूसरे मुगल साम्राज्यवाद में अगर हम देखते हैं दूसरे रूलर्स के मुताबिक, शाहजहां के वक्त में ओके यहाँ पे बहुत सारा इनकम होता था, अच्छा पैसा होता था, देश में बड़ी तरक्की थी, अमन चैन थी, कोई रेवोल्यूशन नहीं था, कोई रिवोल्ट्स नहीं थे। ओके, शाहजहां बिल्ड वर्ल्ड फेमस, हम जानते हैं शाहजहां ने दुनिया का मशहूर, आज एक वन ऑफ द वर्ल्ड वंडर्स कह सकते हैं, ताजमहल इन्होंने निर्माण किया है, दीवान आम एंड दीवान खास इन रेड ओके और इन रेड फोर्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एक्सेट्रा ड्यूरिंग हिज रूल। तो इनके समय में सारा इन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, तो और हम नेक्स्ट रूलर देखते हैं यहाँ पे औरंगजेब। इनका पीरियड क्या था? 1658 टू 1707। ओके, औरंगजेब मेमोरी वॉज वेरी शार्प। तो यह बताया जाता है इनकी जो मेमोरी थी, ओके, इनकी जो यहाँ पे हम तस्वीर में देख सकते हैं औरंगजेब की फ़ोटो, कि इनकी खुसूसियत, इनकी खासियत, इनका एक वो था ट्रेट कह सकते हैं, ह्यूमन ट्रेट, पर्सनल ट्रेट ये था कि इनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी, इनकी याददाश्त बहुत शार्प थी, बहुत तेज़ थी। ही वॉज वेल वर्स्ड इन अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। ये बड़े माहिर थे, मशहूर थे किसमें? अरबिक एंड पर्शियन भाषाओं में, लैंग्वेजेस में ये बड़े महारत रखते थे। ही हैड स्टडीड कुरान शरीफ इन डेप्थ। इन्होंने कुरान पाक, कुरान शरीफ को बड़े गहराई अंदाज में इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा है। ओके, औरंगजेब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। इन्हें आर्ट, कला, म्यूजिक और पेंटिंग इन्हें पसंद नहीं था, इन्हें ना पसंद करते थे। इन ऑर्डर टू फ्री मेवाड़, ओके, इन्होंने फ्री मेवाड़ करने के लिए द ब्रेव दुर्गादास फॉट विद औरंगजेब कंटिन्यूसली फॉर 25 ईयर्स। ओके, मेवाड़ को ओके अपने मुगल एम्पायर साम्राज्य से छुड़ाने के लिए दुर्गादास जो है 25 साल औरंगजेब से कंटिन्यूसली फाइट किया है। सो ये था औरंगजेब के बारे में। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी स्टूडेंट, वी कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू।